Live on the page. Great. Due to some network issues, it took some time. Yeah. I need to Good. change place and all. Good things take time. Okay, that's again shows every time that you have a positive attitude. Yeah, sure. And again, a very good sign of that. Of course, must have written very good books. Thank you so much. Okay, so let me first welcome our viewers, everyone. I am आशिमा गल्होत्रा. I am founder of this platform जन पहचान. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ बुक. मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं और जो लिखना तो चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा दे डोंट नो कि क्या क्या चाहिए. एंड बहुत सारी क्वेरीज हैं. तो उन सब सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ हमारे बीच में है मिस्टर प्रतीक पालोड, वो जो कि 6 बुक्स के ऑथर हैं. और जब मुझे उनके बारे में पता लगा तो मुझे लगा इससे बेहतर हमें कौन बता सकता है कि बुक्स आप कैसे लिख सकते हैं, या आपकी जो भी मन में जो भी दुविधा है, क्वेरीज जो भी चल रही है, उसका ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू आंसर अस. एंड सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने 6 बुक्स लिखी हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो उनके बारे में मैं चाहूँगी मैं आप सबको बताऊँ. He is a chartered accountant. He is a company secretary, and that too with he is a rank holder. He got 7th rank in this company secretary, and he has written books on various subjects. Not only if you will think like he is a chartered accountant, he must have written books on related to subjects, accountancy, taxation. No, he has written books on various subjects like motivation, and he is the best person. We will talk about this, what all subjects or the books he has written upon. And he has made a record as an author, multifaceted author, because he has written books in various subjects, not only in the same subject. He's written all 6 books are from different areas. He is a poet, he is a motivational speaker, he writes. So what else? I think he is a complete package and a multi-talented person who is blessed with these so many skills, I would say. And it is our pleasure, our honor to have such a person. And one thing I missed, Mr. Palod, I think, to tell about yourself, that you are also associate director accounts with Flipkart. So that's again, professionally one thing he is pursuing with this uh, book writing. I know I am getting now, it's making me curious more to know about that, how your journey started. आपने कैसे शुरू किया इतना सब कुछ, पढ़ाई के साथ you are pursuing this all. आपसे बढ़िया कोई हमें बता नहीं सकता है. और मैं फिर एक चीज़ दोहराना चाहूँगी, ये मेरे प्लेटफॉर्म का ऑनर है कि आप आए और मैं आपसे बात कर पाऊँगी और आपके बारे में जान पाऊँगी. तो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका, ये समय निकालने के लिए और हमारे बीच में आने के लिए, प्रतीक जी. तो पहले थोड़ा सा, सबसे पहले तो जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार मुझे जब मैं आपके बारे में भी जाना, और वो सवाल आज तक है, क्योंकि बात मैं करना चाहूंगी आपके साथ उस बारे में कि ये कैसे हुआ, योर जर्नी कैसे आया. मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लिए लाइफ टर्न हुई, या शुरू से आप ऐसे थे, क्या था वो बताइए. जी बहुत बहुत धन्यवाद आशिमा जी. Hope I am visibly smart and audibly attractive. Yeah. Okay. Definitely. Thank you so much for that pretty warm welcome. और हमारे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन. और एक अच्छी सुविधा आशिमा जी ने मेरे लिए कर दी कि मैं कभी भी हिंदी और अंग्रेजी के बीच में स्विच कर लूं, मुझे दिक्कत नहीं होगी और हमारी बात धारा प्रवाह चलती रहेगी. और हाँ, मतलब बाकी सारा कुछ, इतना कुछ जो आपने मेरे बारे में बताया, उसके अलावा बस इतना ही है कि बेंगलोर में पिछले लगभग 5 साल से रह रहा हूँ. 6 साल से, लगभग 6 साल से रह रहा हूँ अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ में. दूसरी बेटी का जन्म तो यहीं बेंगलोर आने के बाद ही हुआ था. यात्रा कहाँ से शुरू हुई? Where did I start? Was I a poet first or a CA first? So the answer is I'm a poet first. I started, Okay. yeah. I started
writing poetry way back in year 2000 when I was just done with my class 10. तो और उस समय it was like कि poetry always attracted me. मतलब मुझे I was always appreciative. मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी मतलब एक अलग तरह का लिटरेरी इंटरेस्ट था. साहित्य पढ़ के हिंदी पढ़ के अंग्रेजी पढ़ के एक अलग तरह की रुचि बनती थी. लेकिन पोएट्री में स्पेशल इंटरेस्ट था क्योंकि पोएट्री की एक स्पेशलिटी होती. पोएट्री की स्पेशलिटी है कम शब्दों में ज्यादा बात कहना. बिल्कुल ठीक बात. और ऐसी बात जो मन को लग जाए. हाँ, और वो बात भी कह देना, वो बात भी एक्सप्रेस कर देना जो एक्चुअली उन वर्ड्स में कहीं है ही नहीं. So it kind of always attracted me कि हाँ कविताएं लिखी जाएं. So 10th के बाद में ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठे बैठे कुछ हंसी मजाक करते हुए I really wrote few very silly lines. मतलब मैं उनको कोट भी नहीं करता हूँ क्योंकि those are really stupid, but कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि हाँ I have that thing कि jokes apart I can write and express myself in terms of poetry. So that is why I started. It was year 2008 when I actually became a chartered accountant. By then I had written, if I can actually recall the count, probably 30 odd poems. And I used to carry and collect those in a diary, handwritten, and that was really a prized possession for me. उस समय इतना टेक्नोलॉजी का यूसेज था नहीं. I mean, saving in what probably the world was ahead, but मतलब I come from a background. मतलब मैंने अपनी क्लास 10 तक की पढ़ाई हिंदी कम मारवाड़ी मीडियम में की है. उसके बाद आगे भी जो पढ़ाई की, इनफैक्ट मैंने अपने सीए इंटर के एग्जाम हिंदी में लिखे थे. I had chosen the medium of paper as Hindi. उसके बाद में मैंने switch किया इंग्लिश में. So that has been a lot of journey. In fact, it helped me learn both the languages. But हाँ, सरस्वती माता का आशीर्वाद ही है. आपने कहा I am blessed, and I truly believe that and remember that every single day कि I am blessed. Otherwise, mostly ये होता है कि जिस particular field में मैं हूँ, मतलब इंजीनियर्स को तो लोग जानते ही हैं कि बड़े क्रिएटिव होते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लोग जानते हैं बोरिंग होने के लिए. Yes, I can very well relate to this, that people have this mindset, because when I do, multi things, people do ask me that you don't seem to be a chartered accountant. How can you be so, jolly or a person who is lively? So I'm like, okay, where is it written that chartered accountant has to be a serious person? So that's again, and Mr. Pratik, I would like to know that, so this journey of writing started after qualifying, or you said after 10th you started, writing after it, 10th I had started, and I would say बहुत धीरे धीरे लिखता था मैं. It was like कभी 3-4 महीने में, कभी 6 महीने में, कभी मतलब something just comes in. और एक poetry जो the essence of poetry is, it comes to you, it occurs to you. आप पोएट्री क्रिएट नहीं करते हो. अगर आप पोएट्री एक्चुअली क्रिएट करते हो कि मुझे इस पे लिखना है, मुझे यू थिंक ऑफ अ सब्जेक्ट एंड यू वांट टू राइट अबाउट इट, इट विल नॉट बी एज गुड एज इट अकरिंग टू यू. कोई चीज आपको अपने आप आ जाती है, इट जस्ट हैपेंस टू यू, देन द पोएट्री एक्चुअली कम्स आउट वेरी वेल. तो मेरे साथ वो था. It is only after, I mean, the 6 books that you mentioned, and everybody can probably see in my background, those 6 books, all of those I have written and published in last 5 years. So it was after coming to Bangalore that I got the company, the guidance, the direction towards how to actually convert my creativity in the form of a book. Okay. But यहाँ प्रतीक जी, सबसे पहला आपको वो आइडिया कब आया? In which year? जैसे 2008 में आपने अपना CA क्लियर किया, और उसके बाद फर्स्ट आइडिया, एंड who was the person who gave you this idea, or it was you only who had this thing in your mind कि I should write a book? Writing a book, as I mentioned, even when I had written merely say 15-20 kind of poetries, I had this kind of a thought कि यार कभी एक book बनानी है. And I absolutely had no idea what a book really takes. Okay. When a books come in a book form, what does it mean? और उसके पीछे कितनी मेहनत चाहिए, कितना श्रम चाहिए, कितनी तैयारी चाहिए.
तो था, लेकिन एज आई सेड, आफ्टर कमिंग टू बेंगलोर, मेरा लिखने का स्पीड, मेरा लिखने का वैरायटी, और मेरा द डेप्थ इन थॉट एंड प्लस द नॉलेज about different subject matter because of the company of writers that I got in Bangalore. And Bangalore is pretty happening and has a lot to give you in whatever field you want to. तो आपकी बात से मैं ये चीज जो मैं समझ पाई हूँ, क्या ये है कि हमें एक मतलब राइटर्स की कंपनी में होना जरूरी है, बिकॉज जैसे हम हमेशा कहते हैं कि एनवायरनमेंट मैटर करता है. Yes. तो आपने कैसे लोगों की फिर अपनी जो ऑलरेडी बुक्स लिख चुके थे, या आपके क्या बोलेंगे इसमें, आपको मेंटोर कहाँ से मेंटोरिंग मिली, और जब आप राह कहाँ से दिखी कि मुझे अब ये चीज ऐसे शुरू करनी चाहिए? Right. So I used to go in those small poetry seminars, we can say, या काव्य गोष्ठी जो हम बोलते हैं. तो वहां पे जाते थे, तो वहां पे धीरे धीरे लोगों को जाना. देयर आर प्रीटी सीनियर पीपल, किसी की 2 किताबें छपी हैं, किसी की 4 छपी हैं, 6 छपी हैं, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो वहां से धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा, किताब जो बनती है ना, वो ऐसे बनती है. मतलब हाँ, इट इज नॉट लाइक कि आपने अपनी पोएट्रीज का कलेक्शन एक मतलब आपने सिर्फ उसको टाइप करवा लिया, एक आपने उसको कुछ नाम दे दिया एंड इट बिकम्स अ बुक. नो, देयर इज अ होल लॉट ऑफ प्रिपरेशन अबाउट हाउ यू वांट टू प्रेजेंट. सी, बुक में आप क्या कर रहे हो? आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने कंटेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को टू द एंटायर वर्ल्ड. So yes, it was those people who guided me. If I have to really take a name, the first name that comes to my mind who helped me create the right frame of the book, who helped me with the thoughts, and especially with the right title to my first book, which was Pigla Darpan. It was Gyanchand Ji Marmagya. Okay, Gyanchand Ji. Yeah, and so आपकी पहली बुक है पिघला दर्पण. पिघला दर्पण. That is the poetry collection. So, मतलब my hardcore, the writer in me is more about poetry. I am more focused on poetry. पिघला दर्पण लिखने के बाद भी मैंने बहुत सारी पोएट्री की है. I keep doing that. मतलब whenever I think about writing something, I mostly think poetic. तो उसके बाद भी बहुत कुछ लिखा है. Probably sometime when I have equally good collection after पिघला दर्पण, I'll publish that also. Okay. But yeah, Gyanchand Ji Marmagya guided me in terms of how the frame, look, and the title should be. There are other gentlemen, Mr. परेशान जी कह के हम बुलाते हैं उनको. He has titled himself as परेशान. हाँ, ये मैंने देखा है कि सभी राइटर्स का एक ही इस तरीके सा होता है टाइटल समथिंग. तो प्रतीक जी, जैसे आपने बोला कि उन्होंने आपको गाइड किया, तो आप उस बारे में हमें बताएं कि पहली चीज तो ये कि ये कैसे, तो एक इंसान बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे सोच लेता है, तो आपने ये कैसे, जैसे पहला तो चलिए आपका पोएट्री था जो कि आप यूजुअली करते रहते थे, उसके बाद शायद आपने ये बी पॉजिटिव, आपने मोटिवेशन पे लिखा. और थोड़ा सा बता दीजिए अपनी बुक्स के बारे में कि 2 पूर्णांक जो मैं पढ़ पा रही हूँ, 3 ठहाके, तो कैसे सबसे पहली बुक से लेकर और उसके बाद आपने कैसे कैसे लिखा, और ये कैसे क्लैरिटी आपको आती गई कि नेक्स्ट मुझे इस चीज पे लिखना है? राइट. पिघला दर्पण की मेरी तैयारी पूरी थी, मेरे पास कंटेंट पूरा तैयार था. उसके बाद में जैसे कि मैंने नाम लिया, परेशान जी ने पूरी उसकी मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा. कमल राजपूत जी ने उसकी पूरी मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा, मेरे साथ बहुत सारी सिटिंग्स की, मुझे पॉइंट टू पॉइंट समझाया कि यहाँ गलत है, यहाँ ठीक है, इसे ऐसे सुधारो. सो इन टर्म्स ऑफ किस तरीके की गलतियां आपने करी? गलतियां हो सकती हैं छंद की, या प्रोज एंड वर्ड्स की गलतियां हो सकती हैं. गलतियां हो सकती हैं एक्सप्रेशन की, कि आप जो बोलना चाह रहे हो वो एक्चुअली उन वर्ड्स के थ्रू निकल के ही नहीं आ रहा. गलतियां हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ टाइटल ऑफ अ पर्टिकुलर पोएट्री, एंड गलतियां हो सकती हैं ग्रामेटिकल, शेयर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, कि मैंने बड़ी की जगह छोटा की लिखा है, विच इज एब्सोल्युटली डिफरेंट इन इट्स मीनिंग. राइट. तो ऐसी सारी गलतियां. बट पिघला दर्पण का कंटेंट मेरे पास तैयार था. देन द सेकंड बुक केम 2 पूर्णांक. 2 पूर्णांक बेसिकली इज हाफ रिटन बाय मी एंड हाफ बाय माय वाइफ. ओके. तो हम दोनों ने मिलके लिखी थी वो किताब. सो उस किताब का टाइटल भी एक्चुअली वहीं से आता है. पूर्णांक मीन्स 9 इज अ नंबर जिसको आप कितना भी मल्टीप्लाई करो, इट ऑलवेज एड्स अप टू 9.
adds up to 9. That's Right. a plain mathematical rule. So दो पूर्णांक is actually 2 into 9. 9 stories by me and 9 stories by her. Okay. So it is a book on stories. Yes. So Short stories, stories we can say. Yes. short stories. Those stories are your own. Yes. Okay. And stories basically they are on what subject, like There are 2, 3 positivity? things. Mostly I write on self-realization and she writes on social subjects. Okay, okay. So if you read my stories, it is like a person who's going to a hill station with his wife. They fall from their bike and there is nobody who is helping them. And after 1 hour, they somehow manage to get an ambulance. And while they get into the ambulance, the husband starts crying. The wife says it is all okay. We will be fine. So he says, I am not crying for today. Okay. मुझे उस दिन के लिए रोना आ रहा है जब हमारे सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसकी सहायता नहीं की थी और तुमने मुझे टोका था. आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई एम रियलाइजिंग इट टुडे कि मैंने उस दिन गलती की थी. सो that is the kind of story that I write. She writes on social issues. So for example, she has written a very touchy story on how the relation of a daughter-in-law mother-in-law can be. Okay. How there is one story which is focused on how we should be careful about what we unintentionally feed to the cows and it can be very harmful to them. Harmful, right, right. Those right. kind of social issues So she basically writes. from of course social awareness it Correct. talks about. तो Correct. प्रतीक जी क्या ऐसा होता है जैसे अब आप भी लिखते हैं और आपकी वाइफ भी, तो क्या आप नॉर्मल ऐसा लगता है कि हर वक्त एक दिमाग में इट्स लुक यू नो एवरी टाइम यू आर प्लानिंग अबाउट द कंटेंट एंड थिंग्स यू लुक अराउंड थिंग्स अकॉर्डिंगली, या ऐसा आपने देखा जब आप अपनी बी पॉजिटिव वाली बुक लिख रहे थे? हाँ. तो अभी आपने एक चीज बोली कि मेंटोर होना बहुत जरूरी है या उस Yes. तरीके की कंपनी में, तो जब आप इस पे लिख रहे थे तब आपने फिर आप किन लोगों का आपने गाइडेंस लिया जो ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे बुक लिख चुके थे, और फिर क्या उस वक्त आप हर वक्त यू नो यू ट्राइड थिंकिंग पॉजिटिव, और व्हाट वाज द जर्नी थ्रू आउट जब बी पॉजिटिव की बुक आपने लिखी? The whole concept behind be positive is it is not an accident, it is not temporary. Be Positive is the book all about self-realization and being aware of your own behavior and the behavior of others. This is a book I would say I have written over a period of 10 years. My God. So if you see, basically this book is my Facebook timeline in the form of a book. On Facebook, I had a habit that every day I used to collect my thoughts, whatever I observe and learn in my daily routine, whether at office or at home or while reading something or while watching a movie. Some thought will click me. I will put it in my own words, and it is just a quote. You can call it a quote. So those thoughts I collected together and then placed it in the form of a book. And it was Dr. Prem Tanmay who actually guided me ultimately in that final conversion of this particular book. So this book has this book doesn't say that do this and life will change for you. Do this and you will be successful. No. Okay. Life will always have surprises. Life will always have challenges. You just have to be aware of your own behavior and the behavior of others and read the situations to respond properly. That's the entire essence of this book. प्रतीक जी, क्या आपने भी ये चैलेंज फेस किया कि जैसे लोगों का ये मानना है कि दैट वन ऑथर शुड राइट बुक्स इन द सेम सब्जेक्ट, सेम यू नो लाइन, तो आपने ऐसा कोई स्ट्रगल या चैलेंज ये फॉलो की मतलब फेस किया कि किसी ने आपको ये बोला हो कि हाउ कैन अ वन पर्सन राइट अबाउट मेनी थिंग्स, या आपको ये लगा कि इफ आई हैव दीज ऑल काइंड ऑफ थॉट्स सो आई शुड राइट इट डाउन, और हैव यू आस्क्ड दिस टू समवन, एनी गाइडेंस? I really wish कि somebody comes and tells me कि एक तरफ तो आप कॉमिक जॉनर में 3 ठहाके लिख देते हो, दूसरी तरफ आप सटायर में being dissatisfied लिख देते हो. We can't accept you like that. I wish I am as famous as that and somebody comes and tells me कि नहीं ये there is a problem. But I would say rather than judging the book and the author by its title, I would say everybody must
whoever wants to must read the book and tell me what they liked about the book, what they did not like about the book, rather And, than jumping to the conclusion that one person cannot be writing all the things. definitely, definitely. So, and how was what was the duration in your books, like when you one book was published and then another? So, Okay, so usually, Pigla Darpan, what if I remember, anybody advised you on this, or it's like there is nothing like that? there was no advice about it. Okay, the most time and effort that it took was the first book, Pigla Darpan. So what happens is, once you do that, you get to know the tricks of the game. You get to understand what it takes and how quickly it can be turned around. So obviously, with every book, I got my learnings, and I was able to convert the things better and faster. I mean, it is like having a first baby and having your second baby. So I you know. you know a lot of things already, right? Yeah, true, true. So it's a bit difficult at the first time, but gradually it's like you get an idea of the things. Yes. So when you and I think we are having a lot of first timers who are willing to learn how to write a book. So for writing a book, I think when I did my first book, what I realized in very very limited bullet points, if I can tell. Number one is you to write the good content, or say very authoritative content which will be likable, which will hold good for you. You must read a lot. Okay. Without reading, you cannot be a good writer. Only when you read a lot of people, whichever genre you want to write poetry or comedy or satire, travelogue, it can be anything. It can be academic books, but you have to read and understand as to what are the right frame, what are the right words, what are the different techniques of writing, and how people bring about their books to the people. So have an experience first about what is happening around and other writers are doing or authors are doing, Yes, so yes. that One you must get an read, idea. correct. And I would say, do not pick any random books. Pick books which you are confident about, that this is a person you already know that is a strong, good writer, and you probably can learn a lot of writing skills from them. And there is one thing which stands very important, which probably doesn't occur to every writer, or at least the first time writer, which these days the publishers help, or the self publishers can help you. They will always tell you a particular structure of a book. So when we read, we do not probably realize. So there has to be a preface, there has to be an index, there has to be somebody talking about the book, there has to be a conclusion, the author's introduction, and those are the different segments of a particular book. Right, So right. those are the things that you learn over a period. But as and when you start thinking of those things and framing those things in your mind while you start writing the book itself, it becomes much more efficient. Okay. So आपको this पहले से पता होता है कि मुझे इस तरह से प्रेजेंट करना है अपनी बुक को. in this all things publisher helps us. Yes, They tell us that these all things are required. yes. If you, whether you go to, I mean, whether you are already established person in terms of writing and the publishers are approaching you, or you approach a publisher, the publishers mostly give you this kind of a framework that Right. your book has to be like this. So if you are writing a novel, probably there may or may not be chapters. Mm-hmm. If you are writing something in the form of chapters, you have to define your chapters. For example, Pigla Darpan has poetry, but again, those poetries I have segmented into 11 different types. Like उसमें देश प्रेम की कविता है, परिवार की है, समाज की है, तो उन सबको मैंने अलग-अलग segment बना दिया. So while there is no chapter, but there are segments. Ramta Jogi में there are chapters. So that way you have to define your book, that in what form it will appear to the reader. Because even when you pick a book in a bookshelf, planning to buy a book or Planning just to buy. trying out, you will always go to the index. Very true. So For the that it index is has, good. correct. The index has to come out well. Right, right, right. So and another
another thing is like many people, they have this wish to write a book, but another thing which comes to mind is the cost factor behind Mm-hmm. that how much we need to spend and the expense factor. So anything in regard to this you would like to share with us? Sure, sure, sure. So in fact, it all depends on what is the objective of you writing a book. So there can be an objective of just documenting your thoughts and having it distributed amongst your friends and family. The other thought can be to actually go and market your book and become a writer or a poet, in terms of really the poet or writer in the industry standing parallel with others. And the third extreme objective can be being a bestseller. The cost of these three is actually different. Okay. So it's like Because if we talk about basic book, first of all, before we go to cost, one thing is just click a question in my mind that what is the good page limit we should consider? You know, that book should be printed if it has this much of number of pages. okay, interesting question, and actually it doesn't have a very definite answer. But what I kind of tell people whenever somebody asks me, um, any book to appear good and somebody willing to buy that book, I think it should have not less than 120 kind of pages. 120. It is Yes. the minimum. Yes. So actually, okay, and let me put it this way. Books can come in different size and shapes. Right. A book can be a pocket book can be a 5 by 8 size of standard book, which all my 6 books are. A book can be in the form of a A4 size book. So it actually depends on what is your content and what is who is your I would say your reader mass. So if you are writing a book which is like Chanda Mama or Champak or Balhans, Mm-hmm. then the number of pages will Pages. obviously be limited, Le- and the frame of the book will be little large so that the children will find it attractive. Attractive. Okay. But when you are writing for the adults and aged people, the frame of the book will be different, number of pages will be more, because they want to read a subject thoroughly. Thoroughly. Okay. So So that's a good point. yes, Okay. so So if you can't really define that a book has to be of this size. so if particularly we talk about the book, your I cannot read the name which is below Ramta Jogi. Ramta Jogi, yeah. Okay. So how many pages it has? Ramta Jogi is about 200 pages, 200. And if it I talks remember about what? correctly. Now the cost is all about how you what kind of package you are going with the publisher. Okay. Okay. So there are different types of packages or schemes available with them. Right. One scheme, or I mean, they have defined it like this. So there can be one where you can approach the publisher, and they will tell you, okay, fine, this is my production cost, and I will give you say 500 copies or 1000 copies, 200 copies, whatever you want, Right. and just be with it. Okay. So roughly the MRP of a 200 page book is somewhere around 250. Okay. So if the MRP is 250, if we go and do a backward calculation, the cost per piece would be somewhere around 120 rupees. 100. Okay. Depending upon the quality of paper and graphics that you have chosen. So obviously that will go up and down. Right. So if you are talking about taking 100 books for yourself and distribute it yourself, then it will be 100 into 100 and you are done. Probably a little bit of margin that the publisher would want to take it from you. Now, if you want to publish that book, make it available on Flipkart, Amazon kind of portals, and do some marketing, some publicity around it, create some Facebook pages. So on each of that add-on service, they will charge you. So this all, the publisher does this all, putting it on Flipkart Yes. and Amazon.
So this is Yes, like you, okay, that's what you're talking about, the package. We need to discuss with that, correct, that what if, correct. whether you will be only printing it or you are also providing the marketing with this. The distribution and marketing, correct. So Distribution this and is, marketing. yes, so this is the e-retail distribution. There can be physical distribution also. Physical distribution may be relatively more expensive. Okay. And nowadays it is more, and even Kindle is there, and there are other platforms. Yes, Kindle is there, but I would say in terms of encouragement, I can say that the physical books are not selling any less, Anyways, yeah. and people are not so convenient yet with the Kindle reading. It is हाँ. not so much in vogue. मतलब इतना भी नहीं है. हाँ, जो लोग बहुत फ्रेंडली हो गए हैं Kindle के साथ में, या बच्चे हैं, स्पेशली इंग्लिश बुक्स के साथ में Kindle बहुत हेल्प करता है क्योंकि उसका डिक्शनरी अवेलेबल रहता है. Available रहता है, right. बट व्हेन इट कम्स टू हिंदी बुक्स या किसी भी और लैंग्वेज का बुक, आई डोंट थिंक कि Kindle कैन हेल्प सो मच. अगर आपका अपने आप से लैंग्वेज नॉलेज अच्छा है और यू आर लाइक कि चलो मुझे अगर नहीं भी ध्यान होगा तो आई कैन सर्च द वर्ड समवेयर एल्स, you can go for the hard copy book. And there are so many people who still enjoy having that feel of a book in Yes, hand and yes. reading it. Even I do. It's like, Correct. we, from so many years, we read from books only. So Yes. it's like maybe it's there in our subconscious mind. It gives us satisfaction to read from the Yes, books it only. can be that subconscious thing also. And I think at times reading from a soft copy may not be as enjoyable really. Yeah. And again, it is screen time it is increasing. That's again, another factor is also there. So we Yeah, should prefer somewhere if you could read from books. correct. Yeah. Correct. And how long it takes, like, in completing a particular book, if you could say कि हर एक book में आपको कितना कितना time लगा? Okay. It actually depends on when you have your manuscript ready. So Ramta Jogi in particular, I'm pretty fond of this book. This book is almost like my autobiography. While it is not, but it is almost like that because it has my travel experiences starting from the age of 4.5 years till 2 years back. Okay. So it has different memories. The conceiving the idea of writing this book and this book coming in the market, it was a journey of 3 months. That's it. 3 months. Okay. That's all. So which book took more time? Okay, the longest time that a book took, I mean, Pigla Darpan has the first poetry coming from year 2000 and the last poetry coming from year 2016. But I cannot say that it took that much time. I had the content ready. Okay, so let's put it this way. To make the content ready, it is like for writing one page, on an average, you take 2 hours. 2 hours. Yes. On an average, if you really have your thoughts and contents clear, writing one page will take 2 hours because you will kind of write and rewrite and edit it and all of that will happen. So one page takes 2 hours. So accordingly, if it is a 200-page book, so you can say 400 hours it will go into writing it. Maybe another 50 hours to read, reread and edit it. And once you have the manuscript ready, it takes about 2 months to publish the book, to bring the book in the form of a book in market. Okay. So it's about 400 hours, then again 50 hours, and then 2 months. Yes. Okay, the complete duration for a book. Correct. So 400 hours can be any number of days for a person. If you are able to devote 10 hours per day or you are able to devote 2 hours per day, it all depends on that. बट जो मुझे लगता है कि टाइटल एक तो ये थी कि आपने अंदर जो लिखा, बट टाइटल, एक कैची टाइटल ढूंढना, वो अपने आप में एक बहुत एक और चैलेंजिंग चीज है कि लोग जिससे अट्रैक्ट हो. तो उससे रिलेटेड आपकी क्या आपका रहा एक्सपीरियंस? There are 3 things which are the face of a book. एक होता है उसका cover page, the front cover, which actually gives you the persona of a book, कि ये book क्या है, what it is all about. The greatest impression comes from the title.
Of course. And when we talk about title, it is not just the verbatim of the title, it is the font, it is the design, it is the alignment, everything of the title which will catch the eye and which will give a message as to what this book is all about. And number 3 is the synopsis of the book, which is on the back cover. Right. So these 3 things have to be very carefully crafted, drafted, and they must represent the book. मतलब ये 3 चीज को देख के ही कोई भी डिसाइड करेगा कि उसको ये किताब पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, if it is not for free. I know. So, how did you decide on this thing? And it's like it's again one is be positive, and I think one is on तीन ठहाके, और फिर आपने बच्चों के लिए भी एक लिखी है. That so is how could where... your mind think for everyone, every kind of audience? Okay, that is where the 6th book goes actually deceiving, and I have heard it from every person who looked at the book. The book has some childish cartoon faces on it, but the book is not for kids. Okay, wow. So you're talking about it is being dissatisfied. Dissatisfied. Oh yes, even I was thinking that this is for kids. It is, so it is actually not for kids, and as you see, there are only and only irritated, frustrated, angry faces on it. Right. I must say that you have definitely made a kind of cover page which is attractive. कि कहीं ना कहीं yeah, it is. Thanks to the publishers, we worked together on this, and they were able to come out with this. So one thing which I learned from Gyanji, as I was mentioning, Gyanji से जब मेरी बात हो रही थी, और वो मुझे बहुत सारे टाइटल्स के बारे में बता रहे थे कि किताबों के ऐसे टाइटल होते हैं और ऐसे टाइटल होने चाहिए. तो टाइटल में क्या होना चाहिए? एक तो थोड़ा सा टाइटल इंडिकेटिव हो और थोड़ा सा उसमें सस्पेंस भी हो. अब जैसे पिघला दर्पण है, यू कैन इंटरप्रेट इट इन मेनी वेज, कि मतलब, और अगर आप उसका पूरा इमेज भी देखेंगे तो देयर इज अ मिरर विच इज मेल्टिंग. यस. और मैं अपने आप को एज अ राइटर, जैसे मैंने परेशान जी का नाम लिया, तो मैं अपने आप को दर्पण कहता हूँ. अच्छा. मैं दर्पण क्यों कहता हूँ? क्योंकि 95% ऑफ माई पोएट्री आपको उसमें दिखेगा कि मैं खुद के बारे में ही लिख रहा हूँ. आई एम नॉट राइटिंग अबाउट एनीवन एल्स बट माई सेल्फ. तो आई से कि आई एम द रिफ्लेक्शन. मेरी पोएट्री मेरा अपना रिफ्लेक्शन है, और वो पिघल रही है. इट इज मेल्टिंग. सो दैट इज द टाइटल. तो इट शुड गिव दैट क्यूरियोसिटी. उसमें थोड़ा सा वो सस्पेंस, थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा इंडिकेशन होना चाहिए. When it comes to दो पूर्णांक, अच्छा, एक चीज मुझे उनसे बहुत अच्छी सीखने को मिली, और मुझे लगता है कि वो बहुत कैची है. इट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. और आप when you go back and think about lot of books, you will actually probably able to find it, कि किताबों के टाइटल जब 2 वर्ड के होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं. ओके, तो तभी आपकी हर एक उसका 2 ही है. ओके, वेरी गुड. तो 2 वर्ड के जो टाइटल होते हैं, एक वर्ड का टाइटल हो बहुत अच्छा लगता है, 2 वर्ड के टाइटल थोड़े से और अट्रैक्टिव लगते हैं. ओके, सो दैट्स अगेन देयर इज अ स्ट्रेटजी बिहाइंड. सो आपने ये जो कवर पेज डिसाइड करने में, हर चीज में भी पब्लिशर हमारी हेल्प करते हैं. सो आप उनको बेसिकली थीम बताते हो, आप उनको एक्सप्लेन करते हो. 2-3 चीजें आपको उनको बतानी होती हैं. एक तो आप उनको पहले डिस्क्रिप्शन लिख के देते हो कि किताब किस बारे में है. पूरी किताब का एक सिनॉप्सिस आप देते हो कि थॉट क्या है इस किताब के पीछे. जैसे 3 ठहाके जो किताब है, उसमें नाटक हैं, एंड दोज आर ऑल इन कॉमिक जॉनर. वो पहला नाटक मैंने लिखा था समवेयर बैक इन 2006, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 2005 या 6 में. फिर उसके बाद में कभी शायद 2011 में लिखा, और फिर उसको फिर से लिखा, नया फिर से चेंज किया, एंड ऑल दैट हैपेंड. अब मुझे उसमें प्लेन ये चाहिए था कि दिस इज शेयर सिंपल फैमिली कॉमिक जॉनर. तो इसमें मैंने उनको, आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे इसमें बच्चों की हंसती हुई फोटो चाहिए, एंड इट हैज टू बी अ वेरी ब्लिसफुल स्माइल, अ ब्लिसफुल लाफ्टर, कि बहुत जेन्युइनली हंस रहे हैं और बच्चे हंस रहे हैं, विच इंडिकेट्स कि इस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको किसी से छुपा के पढ़ना पड़े. ओके, वाओ. So even a kid can enjoy. I mean, if you read it to a kid, उसको भी मजा आएगा. देखिए, मेरा एक मानना था कि
कहीं ना कहीं आप उस आपका वैसा ही थॉट प्रोसेस या आपका लाइफ का एक्सपीरियंस उतना होना चाहिए जिस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा वो लग रहा है कि आप यानी कि यू आर अ पर्सन जो एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखता है, अगर मैं इसको ऐसे समझूं। या आप क्रिएटिविटी तो चलिए है ही कि पोएट्री आप लिखते हैं, आप क्रिएटिव सोचते हैं। तो मैं ये क्या मानूं कि जितना मेरा मानना है कि आप तभी वही चीज उतार पाते हैं। और देखिए 120-200 पेज लिखने के लिए कहीं ना कहीं मेरे जीवन में उतने एक्सपीरियंस होने चाहिए, यस मेरे जीवन में उतना यस मुझे समझ होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में, तभी मैं उसे लिख पाऊंगी। तो ये कैसे है कि आप हर चीज कर पाते हैं? इट्स लाइक एंड इवन बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मुझे लगता है मेरे जितने सर्कल में और सीएस है, सबसे पहला तो उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आप टाइम कैसे निकालते हैं with your job that you know in the scene already you are on a senior position, और उसके यस बाद हर तरीके से दिमाग चलाना, तो इट्स लाइक ऑफ यू नो ये तो वंडर ही है। तो आई कैन प्रोबेबली कॉल इट दी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मतलब मेरी लाइफ में एफएक्यू जो है उसमें सबसे टॉप पे ये आता है कि हाउ डू आई मैनेज टाइम। और या इनफैक्ट मैंने एक बहुत छोटा सा वेरी क्विक बुलेट पॉइंट्स में मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था लिंक्डइन पे कि हाउ डू आई मैनेज टाइम। तो इसमें 2-3 चीजें हैं विच मतलब मैं आपको बिल्कुल अपफ्रंट बता सकता हूं कि कैसे मेरा टाइम मैनेज हो जाता है। नंबर 1, मैं चाय और कॉफी पीता नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ सेव करते हैं जो 15-15 मिनट इधर उधर जाते हाँ, हैं। 15 मिनट आधा घंटा जो भी निकल जाता है चाय तक हम्म पहुंचने में, पीने में और वापस आने में, वो मेरा जाता नहीं है। जाता मैं नहीं। हमेशा अपने ऑफिस के नजदीक रहता हूँ। अच्छा, मतलब आई हैव टू स्टे क्लोजर टू माय ऑफिस सो दैट आई सेव टाइम ऑन सेव हो ट्रैफिक। जाए। ओह वाओ, दैट्स गुड। नंबर 3 है कि मेरी जो फैमिली है, मेरी पत्नी है, दोनों बच्चे हैं, हाँ जी। उनके साथ में मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है कि मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, तो अभी मैं लिख रहा हूँ तो अभी मुझे टाइम दे दो। तो जिस टाइम आप जिस दौरान आप लिखते हैं तो उस टाइम हाँ, में ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं? नहीं, वो तो अभी देखिए एडवांटेज है। आज आप ये तो टेक्नोलॉजी हो के गया। टाइम में हैं, तो हम्म। अब तो आप स्पीच टू टेक्स्ट वाले युग में आ चुके हैं। अच्छा, तो अब तो ऐसा है कि आप जहां मर्जी खड़े हो आप लिख सकते हैं। लिख सकते आप एक्चुअली ड्राइव करते करते अपना टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट चालू कर हैं। लीजिए, एंड हाँ इफ एनी बिल्कुल, थॉट कम्स टू यू आप वहां पे उसको नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बोल के कर हाँ सकते हैं हाँ। जैसे कोई तो विचार आया। यस यस, तो पहले द स्पीड ऑफ राइटिंग वाज मच स्लोअर, लेकिन अब तो हम मतलब टेक्नोलॉजी, और मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी में हम सबको ये एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, हमको सीखना चाहिए सीखने कि चाहिए, हाउ डू वी बिल्कुल। स्पीड अप आवरसेल्व्स। बिल्कुल तो ठीक ये कह चीज रहे तो हैं। आनी चाहिए। यस ये तो है, ये तो मैंने भी देखा है। व्हेन आई वाज अर्लियर आई वाज लाइक स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग कि इतना अगर मेरे पास एक अच्छा बड़ा विचार है तो इट वाज वेरी हार्ड टू राइट। सो आई इवन स्टार्टेड स्पीकिंग नाउ। तो अब इट इज यू नो इन दीज इट इज इजी फॉर करेक्ट। मी नाउ। आई कैन राइट ऑन लिंक्डइन एंड फेसबुक अ वेरी लॉन्ग कंटेंट, बट पहले मुझे यही लगता था इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड फिर कहीं ना कहीं मैं चुराती थी कि नहीं नहीं लिखना, लेट इट बी विद मी ओनली। बट हाँ इवन हाँ। देन आई थॉट कि नहीं, इट्स नॉट गुड, आई शुड। फिर वही है कि दैट यू नो नेसेसिटी इज द मदर, यू नो कोट इज देयर, यस कि यस। जरूरत से ही आप कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हाँ, तो जब आप व्हेन यू डोंट स्टिक टू योर ऑब्जेक्टिव ना, कि चलो नहीं लिखा तो नहीं लिखा, नहीं जब आप वो लिखा। थोड़ा सा छोटा सा गिव अप मार देते हैं ना, तब हम्म, वो चीज पीछे हट जाती है। पीछे जब हट आप जिद जाती है। करके बैठ जाते हैं कि नहीं मुझे तो करना ही है, दैट इज व्हेन यू एक्चुअली गेट इट। तो आप कितने दिनों के लिए फैमिली के साथ ही आपकी क्लैरिटी आ जाती है, कि 2 महीने, कि आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे अभी आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन माय 7th बुक राइट नाउ, व्हिच इज ओह माय अगेन इन गॉड। इंग्लिश। मतलब मेरा अच्छा, बीइंग डिससेटिस्फाइड इज अ बुक इन इंग्लिश, बी पॉजिटिव इज अ बाइलिंगुअल बुक, वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। अच्छा, यहाँ पे मैं मिस ना कर जाऊँ प्रतीक जी। आप जैसे जिस लैंग्वेज में आप, जैसे हिंदी में आपने बताया आपका मेजरली मीडियम वही रहा, हाँ तो हाँ। वी ऑल्सो गेट हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर्स है इन द मार्केट? डू वी हैव सच काइंड ऑफ पीपल जो ट्रांसलेटर्स मिल जाएंगे। पहली बात तो ये है कि हमें उसी भाषा में लिखना चाहिए जिसमें हमारी पकड़ हो। ठीक है, ठीक है। हाँ, मतलब रादर देन ट्राइंग टू राइट समथिंग, मतलब मैं तो कहता हूँ कि आप अगर तमिल जानते हैं या भोजपुरी जानते हैं, आप उसी में लिखिए, उसी का, हम्म, लेकिन उस भाषा को, उसके ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ के लिखिए।
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब मुझे कुछ फ्रेश राइटर्स ने अपनी बुक्स दी एंड मैं बड़ा इनफेमस हूँ अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट रिमार्क्स के लिए, फीडबैक के लिए। हाँ, और मैं बिल्कुल इमीडिएट पूरा फीडबैक दे देता हूँ। मेरी वाइफ मुझे कई बार मना करती है ये मत किया करो, बट आई फील लाइक डिसऑनेस्ट अगर मैं उनको ये ना बताऊं। बट मैंने ये देखा है कि इन द हरी टू पब्लिश अ बुक, मतलब मुझे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे ये घोषणा करनी है कि मैंने एक किताब लिख दी, उस जल्दबाजी में वो इतनी खराब किताब बन के आती है जिसमें ग्रामर का पता नहीं है, जिसमें थॉट आपका पैरेलल एक स्ट्रीम में नहीं चल रहा है, आपका कंटेंट का सीक्वेंस सही नहीं है। तो आई थिंक वहां पे आप जब वो मेहनत करने से चूक जाते हैं ना, एंड देन फिर आपको सिर्फ रजिस्टर ही करना था कि नहीं मैंने एक किताब लिख दी है, तो ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। लेकिन अगर एक मीनिंगफुल किताब लिखनी है जिसको एक थर्ड पर्सन अप्रिशिएट करे, उसके लिए जरूरी है कि आप उसके ऊपर पूरा टाइम दो, मेहनत करो। तो देखिए, मैंने देखा है जैसे जहां आप 2-3 महीने कह रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको सालों भी लग जाते हैं एक किताब को पूरा करने में, कि एक आइडिया आया और वो धीरे धीरे उस चीज पे लग गए हैं कि जैसे जैसे उनको कुछ अच्छा कंटेंट या उनका कोई एक्सपीरियंस हुआ लाइफ का, वो उसमें लिखते जाते हैं। जैसे आप बार बार एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा हमें गाइडेंस देंगे कि स्ट्रक्चर में क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए, कि क्या पहले देना है और कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है हमें? एक तो मैंने बताया कि जैसे जो हमारी टाइम को लेके बात हुई, रमता जोगी मैंने 3 महीने में लिख दी, लेकिन बीइंग डिससैटिस्फाइड लिखने में मुझे 2 साल लगे। अरे ओके। क्योंकि एक तो मतलब ऑल सेड एंड डन में चाहे जितना भी टाइम मैनेज करूं, मुझे अपनी जो मेरी रोजी रोटी है, जो ब्रेड एंड बटर है, उसके साथ तो मुझे न्याय करना ही है। बिल्कुल। तो उसके साथ में समय मिल पाना, वो एक अपने आप में। अब रमता जोगी मैंने इतना फास्ट क्यों लिखा? क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी मेमोरी को रिकॉल करके लिखना था। बीइंग डिससैटिस्फाइड में टाइम क्यों लगा? क्योंकि मुझे नया कंसीव करके, फ्रेम करके लिखना पड़ेगा कि कोई नई बात मैं लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। तो उन दोनों में बहुत अंतर है और उसमें स्पीड का भी उतना ही अंतर आता है। नाउ कमिंग टू कि कितना समय लगेगा, और मतलब फ्रेम की अगर हम बात करें, तो जैसे मैं कई बार, मुझे किसी और ने भी पूछा था, आप फ्रेम के साथ एक्सपेरिमेंट करो। वैसे ये बहुत टफ होता है। जैसे मैंने किसी को, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, किसी ने मुझे कहा कि वो ही नोज चेस वेरी वेल, वो मतलब एक्चुअली चेस का कोच है। तो उसने कहा कि चेस के ऊपर उसको किताब लिखनी है, एंड ही वाज एक्चुअली हैविंग ऑलमोस्ट अ सिमिलर कन्वर्सेशन विद मी कि मैं किताब लिखना चाह रहा हूं, चेस पे कैसे लिखूं। तो मैंने उसको ये कहा कि तुम चेस पे किताब, अगर वो किताब लिखोगे जिसके जैसी 50 किताबें या 500 किताबें ऑलरेडी मार्केट में हैं, हाउ विल योर बुक स्टैंड आउट? बिल्कुल ठीक। मैंने उसको ये बोला, आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो। हर एक को मैं ये बोलूंगा कि आप जो भी लिखना चाहते हो, उसमें कुछ ना कुछ यू हैव टू पुट दैट गार्निशिंग ऑफ यूनिकनेस, कि क्या नया लिख रहे हो आप उस किताब में। और अगेन, नया लिखने के लिए भी यू विल हैव टू काइंड ऑफ फाइंड द ट्रेंड्स, कि क्या चल रहा है, लोग किस तरह से नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इट कैन बी एक्सपेरिमेंट्स विद ग्राफिक्स, इट कैन बी एक्सपेरिमेंट विद जॉनर, इट कैन बी एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रेम। तो मैंने उसको क्या बोला, आप चेस पे किताब लिखना चाह रहे हो, आप लोगों को चेस के रूल समझाना चाह रहे हो, उनको चेस में एक्सपर्ट बनाना चाह रहे हो, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। अच्छा, वैसे भी स्टोरीज में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो हर चीज एक। हाँ, तो क्या होगा कि आप एक स्टोरी में लिख रहे हो कि 2 लोग चेस खेलने बैठे हैं। अब उसमें आप और कैरेक्टर लेके आ जाओ, एक जन चला जाता है, दूसरा जन उस चेस को खेलना शुरू कर देता है, वो पहले वाला ज्यादा होशियार था, ये कम होशियार है या ज्यादा होशियार है, एंड उसके बाद में वो जो चेस में जो चालें चलते हैं, आप उसको पूरा स्टोरी में लेके चलो। While I did not appreciate the movie a lot, there was a movie called भिंडी बाजार, जिसमें चेस के गेम को ही पूरा नरेट किया था उस पूरी मूवी में। So that is the kind of experiment you can probably do in the book that you want to write. तो जैसे इनफैक्ट मेरा फ्रेम गलत था। बी पॉजिटिव का जो आप फोटो देख रहे हो, जब मैंने पहली बार ये किताब 2017 में लिखी थी, इसका फ्रेम गलत था और मुझे ये फीडबैक मिला एक रीडर से। अच्छा। उस रीडर ने पहले मुझे बोला ये बुक बहुत अच्छी है,
फिर उसने कहा मैंने इस बुक के 2 पेज पढ़े, अब ये मुझे बुक बिल्कुल ही इररिलेवेंट लग रही। मैंने कहा यार तुम हाउ कैन यू चेंज योर ओपिनियन इन जस्ट अ मैटर ऑफ हाफ एन आवर? बोले नहीं, आपने इतनी सारी चीजें लिख तो दी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि उनको रिलेट कैसे करें, एंड इट इज जस्ट टू मच टू ऑब्जर्व। तो फिर मैंने अब जो आप ये बुक देख रहे हो, मैंने उसके ऊपर स्टैंप भी डाला, इट इज द इम्प्रूव्ड वर्जन, और मैंने उसको IMPROVE के टाइटल से उसको 7 सेगमेंट में बांटा है। Now when you read the book you can actually relate to it. So I actually learned from that mistake. तो उन्होंने क्या बताया था आपको? जैसे मैंने बताया कि इस बुक में कोट्स हैं, कोटेशंस, देयर आर कोटेशंस, ठीक है। अब उस कोटेशन में एक कोटेशन आता है सेल्फ रियलाइजेशन का, दूसरा कोटेशन आता है अपॉर्चुनिटी का, तीसरा कोटेशन आता है पर्पस का, और चौथा आता है वैल्यूज का। तो ही वाज कंफ्यूज्ड कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूं और मैं इससे व्हाट डू आई टेक अवे फ्रॉम इट। तो अब मैंने उसको उन 7 सेगमेंट्स में फ्रेम करके उसको सीक्वेंस में डाला, एंड आई एक्चुअली रीवर्कड ऑन द होल बुक। इनफैक्ट जो बुक पहले शायद 140 पेजेस की थी, इट विल नाउ कम आउट टू बी 251 पेजेस। बी पॉजिटिव का जो इम्प्रूव्ड वर्जन है, इट इज एक्चुअली इन द प्रेस, इट विल कम प्रोबब्ली इन 2-3 वीक्स टाइम। ओके ओके, थोड़ा सा हेलो। हाँ, आई कैन हियर यू, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके। और तो इसके अलावा ये है कि टॉपिक्स के जो भी आपने बुक लिखी और टॉपिक्स है, उसके पीछे कैसे आइडिया एकदम से आ गया, या उसके लिए भी आपको एक अलग स्पेशल टाइम लगा? आइडिया मुझे आइडिएट करने में सबसे ज्यादा टाइम लगा बीइंग डिससेटिस्फाइड के लिए, क्योंकि आई क्लेम कि ये अपने आप में बड़ी यूनिक बुक है। ये बुक बताती है कि दुनिया में सब कुछ गलत है और हर कोई आपका दुश्मन है। सो ये अपने आप में द वे द बुक इज रिटन, इट इज एक्चुअली अ सटायर। उसका एक्चुअली थॉट वो नहीं है, बट जिस तरह से लिखी हुई है उससे आपको एक सेंटेंस में लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, एंड देन यू विल रियलाइज कि मैं भी उस गलत का हिस्सा हूं। सो आई हैव टू करेक्ट। ओके ओके तो ओके, हाँ, तो दैट इज व्हाई द एंग्री फेसेस। तो इसको फ्रेम करने में, इसको लिखने में, वो आइडिएट करने में बहुत टाइम लगा। तो इसके अलावा प्रतीक जी, आप कुछ अपनी जर्नी से हमें ये शेयर करना चाहेंगे कि ये गलती जो मुझसे हुई ये नहीं करिएगा? कुछ आपका अपना एक्सपीरियंस है, आप बताना चाहेंगे कि जो बुक्स लिखना चाहते हैं? यस, एक तो जो मैंने बोला कि फ्रेम ऑफ योर बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमेशा, जो गलती मैंने की, सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि बुक को पब्लिश करने से पहले मैं अपनी बुक, इनफैक्ट अगेन द स्टोरी गोज विद बी पॉजिटिव, कि जब मैंने उसको रीड्राफ्ट किया तब मुझे पता चला कि इसमें कई तरह की छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी थी। तो बी डबल श्योर कि आपकी बुक में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, आपकी बुक का फ्रेम एंड फ्लो सही है, और आप अपनी बुक को खुद 2 बार पढ़ो, पूरा मैन्युस्क्रिप्ट लिख लेने के बाद, और 2 बार पढ़ो। ऐसे नहीं कि आज आपने बुक लिखी और कल पढ़ने बैठ गए। आप 2 हफ्ते का ब्रेक लो, उसके बाद में उस बुक को वापस पढ़ो, आपको अपने आप उसमें गलतियां मिलेगी। आपको लगेगा कि इसमें ये कुछ मैंने या तो पूरा नहीं लिखा या गलत लिखा है, आई नीड टू करेक्ट इट। प्लस अपनी बुक को किसी ना किसी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन से क्रिटिसाइज करवाओ, एडिट करवाओ। जब तक आप अपने से स्ट्रॉन्ग बंदे से अपनी बुक को रिव्यू नहीं करवा लेते, डोंट सेंड इट टू द पब्लिशर। पब्लिशर आपको कभी, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, पब्लिशर आपको एक तो बहुत सारे पब्लिशर्स मैंने देखे हैं, आई फेल्ट रियली बैड फॉर द पीपल जिन्होंने अपना पैसा लगाया, बुक पब्लिश करवाई, लेकिन पब्लिशर ने उनको ये तक नहीं बताया कि आपकी किताब में दुनिया भर की गलतियां हैं।
लेकिन अच्छा, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि फिर पब्लिशर भी डिसाइड सही किया जाए। एक तो ये हो गया कि अपनी बुक आप अपने उनसे पढ़वाइए जिनसे आप फीडबैक अच्छा ले सकते हो, दूसरा पब्लिशर भी इसमें हेल्प करेगा। हाँ, तो पब्लिशर, यू शुड ऑलवेज रिसर्च द पब्लिशर बिफोर रियली गोइंग अहेड विद देम। कुछ पब्लिशर होंगे जो आपको टाइपिंग का फैसिलिटी दे सकते हैं, कुछ आपको प्रूफ रीडिंग का फैसिलिटी दे सकते हैं, बट प्रूफ रीडिंग भी, माइंड यू, प्रूफ रीडिंग अगेन इज अवेलेबल विद इंग्लिश ओनली। As it comes to the regional languages और से हिंदी, संस्कृत, मलयालम, तमिल, प्रूफ रीडिंग बहुत सारे पब्लिशर अच्छी नहीं कर पाते हैं। आई वुड ऑलवेज रेकमेंड गो टू अ लैंग्वेज एक्सपर्ट और उनके हाथ पैर जोड़ के उनसे अपनी बुक रिव्यू करवाओ। रिव्यू करना। ओके, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एंड Yes. प्रतीक जी, उनके लिए एक छोटी सी आपकी तरफ से एक एडवाइस, जो लोग कभी फ्यूचर में अगर बुक लिखना चाहेंगे, अगर आज से उन्हें क्या चीज शुरू कर देनी चाहिए? जैसे अगर मान लीजिए एक तो हो गया कि हमने क्वालिफाई कर दिया और एक हमें एक डायरेक्शन मिल गई है कि इस सब्जेक्ट पे Yes. लिखना है, या अभी हम पढ़ रहे हैं बट अभी से जो एक आप मे बी हम अपने बच्चों को दे पाए या मे बी हम अपने यूथ को ये Correct. एडवाइस दे पाए, तो Correct. आप कौन सी ऐसी हैबिट आप या कुछ एक ऐसा चीज कहेंगे कि ये चीज आप आज से डेवलप करना शुरू कीजिए ताकि आगे जाके आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा? दो चीजें हैं जो मैंने पहले भी बोली। एक तो अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी और जब आप पढ़ रहे हो तब भी अपना, मतलब वो मेरी अपनी टेक्निक है, मे बी इट अप्लाइज टू समबडी और नॉट, बट अपना पेन साथ में रखो और हर वो चीज उस किताब में, जो किताब आपको अच्छी लगी पढ़ने में, एंड माइंड यू इट कैन बी बाल हंस ऑल्सो, लेकिन आपको पढ़ने में अच्छी लग रही है, आपको अगर किताब लिखनी है, ऑलवेज हैव दैट थॉट इन माइंड कि मुझे एक किताब लिखनी है एंड आई एम गोइंग टू पिक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम समथिंग। मैं अपना पर्सनल, जो मेरा आई कैन से निंजा टेक्निक है, मैं मूवीज से बहुत इंस्पायर होता हूँ। ओके, ओके। मैं मतलब whenever I watch a movie, I watch it for कि मुझे यहाँ से कोई डायलॉग, कोई सीक्वेंस, कुछ ऐसा मिले जो कहीं पर अगर मैं उसको अप्लाई कर सकूं या उसके जैसा कुछ लिख सकूं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉपिंग, राइट, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉपिंग इन एनी सेंस। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उनसे सीखो कि देखो इसने ये चीज, ये डायलॉग पर्टिकुलरली, या ये सीक्वेंस, या ये स्क्रीन प्ले इन्होंने ऐसा लिखा, इसको सुन के देख के बड़ा अच्छा लगा। नाउ हाउ यू लर्न इट एंड प्रेजेंट इट इन योर ओन वेज, ओन वो वे, आप अच्छा, सीखिए। और दैट्स वेरी दूसरा, गुड। आपके मन में जब भी थॉट आए, जो मैंने पहले भी बताया कि टेक्नोलॉजी की मदद लो और ऑलवेज यूज इट फॉर योर बेस्ट। आपके मन में जब भी थॉट आए, प्लीज या तो आप किसी और को बोल दो कि मेरे लिए ये लिख के रख ले, या आप खुद उसको लिख के रख लो, क्योंकि थॉट्स है ना, ये बड़े प्रीशियस होते हैं और बड़े मोमेंटरी होते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो एक ये चीज है कि एक तो पढ़ना एक अच्छी आदत है और दूसरा ये थॉट्स को लिखना शुरू कीजिए। ये यस, बहुत, जैसे मुझे याद है कि ये बहुत सारे लोगों ने हमें लाइफ में बताया कि डायरी राइटिंग जरूर कीजिए अपने रोज का, ताकि हम कहीं ना कहीं इस हैबिट में आए और शायद वहीं से हमारे जीवन में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे पड़ाव आते जाते हैं, लेकिन क्या होता है हम लिखते नहीं है इसलिए हम भूल जाते हैं। तो अगर हम करेक्ट, देखें तो हर एक की कहानी में भी बहुत कुछ है सीखने का। तो यस, शायद कहीं ना यस, कहीं हम एक अगर हम लिखने की आदत डालें, पढ़ने की आदत डालें, तो एक दिन हमारा जो काफ़ी लोगों का एक ये करेक्ट, सपना रहता है और आजकल तो बहुत क्रेज़ है, बहुत हाँ, क्रेज़ है बुक हाँ, राइटिंग का, हाँ, एवरीवन इज़ डूइंग। तो मेरी यस, बहुत सारी चीज़ें आज हमारी क्लियर हुई हैं। एक तो जो मेरा, मुझे ये लगता था कि नहीं आप एक ही सब्जेक्ट पे लिख सकते हैं, तो ये भी है कि नहीं, यू कैन राइट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। बट यस, येस, ऑफ कोर्स, फॉर दैट वी नीड टू बी दैट टैलेंटेड एज़ यू। ये तो नहीं हो सकता कि हम इतना सब कुछ एक साथ सोच लें कि नो, आई वुड से कि मैं ये बोलूँ कि मैं सेंस ऑफ ह्यूमर पे अच्छा लिख लूँगी तो नहीं। बट हाँ, यस, एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्ट्रेंथ, यू हाँ, मस्ट नो ऑन इट। ऑन यस, या, सो वो एक वो जानना ज़रूरी है, ठीक है, उसके बाद फीडबैक। सो बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हुई हैं। हाँ, ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ कि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी होगा। श्योर। as you get down ऐसा to कीजिए, write, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, लिखना, और बहुत चीज़ें क्लैरिटी में आई हैं और मेरी कोशिश रही है कि मैं जो सबके सवाल होंगे, मेरे भी सवाल थे, मैं आपसे वो पूछ पाऊँ।
फिर भी Sure. अगर कुछ ऐसा है जो किसी की पर्टिकुलर क्वेरी है, वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं या मेरे थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकते हैं Oh, अपने definitely. क्वेश्चन। It will be a लेटर ऑन भी pleasure. जो लोग ये लाइव बाद में भी देखेंगे तो वो भी अपनी क्वेरी या क्वेश्चन इसमें टाइप कर सकते हैं, तो प्रतीक जी उसका रिप्लाई कर देंगे। ही इज देयर विद अस ऑन पेज। तो बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ क्लियर हुआ और मज़ा आया आपसे बात करके, आपके बारे में जान के। और उम्मीद करती हूँ जो लोग सुन रहे हैं उनको भी काफ़ी मदद मिली होगी आज के सेशन से। तो जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, बहुत जन बहुत धन्यवाद। पहचान प्लेटफॉर्म पे थैंक आने यू के सो लिए। मच। एंड थैंक यू यू सो ट्रूली मच। ट्रूली इंस्पायर्ड मी एंड आई होप टू मैनी कि माय जरूरी प्लेजर। नहीं है कि आप अगर एक सीए बन जाएं या कुछ आप और चीजें नहीं कर सकते हैं लाइफ में, और टाइम को मैनेज करना इतना स्ट्रगल बड़ा नहीं है लाइफ में। यू नीड टू फिक्स योर प्रायोरिटीज एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्रिसाइसली, प्रिसाइसली। Precisely. You set a very good example for that. Yeah. So thank you, sir, for coming. It थैंक यू was a सो मच। pleasure having you here. Thank you so much. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।